बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है वो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन विद एयर रेजिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और हमने आज फिगर 2.4 भी देखनी है। चले, हेडिंग है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। It can be found by putting y is equals to 0 and small t is equals to this t। ये वाले t का जो साइन है ये थोड़ा डिफरेंट है। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस जी आर ओवर के, और जी आर नहीं सॉरी टी और के इज इक्वल्स टू माइनस जी टी ओवर के प्लस के वी वन प्लस जी ओवर के स्क्र, के वी वन प्लस जी ओवर के स्क्र इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। और r इज इक्वल्स टू r के लिए t इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू वन माइनस के टी। आपने एक्सरसाइज से ड्रॉ करनी है। ठीक है, पॉइंट ओ से जो है ये पाथ आ रहा है। एक है पाथ विद एयर रेजिस्टेंस और एक है पाथ विद नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ड्रॉ कर लें पिक्चर। फर्स्ट पाथ जो है वो पाथ विद एयर रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट जो है वो पाथ विद नो एयर रेजिस्टेंस। लेकिन दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व this equation cannot be solved exactly for t, that is time of flight, full stop. To find an approximate solution, we will expand the exponential factor. That is e power x is equals to 1 plus x square over 2 factorial plus x3 over 3 factorial plus up to so on. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जो है वो हमने एक्सपेंड किया। तो हमारी ऊपर वाली जो इक्वेशन है जो t के लिए हमने निकाली थी वो क्या फॉर्म आ जाएगी उसकी, t इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू के टी माइनस के स्क्र टी स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस के क्यूब टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। या 1 इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू के माइनस के स्क्र ओवर टी over 2 plus k cube t square over 6 plus up to so on, which on simplification
which on simplification gives t is equals to 2v1 over 2v1 over g plus kv1 g plus kv1 plus 1 over 3 kt square plus up to so on. In the limit of small air resistance, in the limit of small air resistance, that is k approaches 0, the above expression reduces to t is equals to 2v1 over kv1 plus g plus k over 3 t square. और जो आगे वाली टर्म्स थी वो सारी खत्म हो गई. t is equals to 2v1 over kv1 plus g plus k over 3 t square. When there is no resistance, that is k is equals to 0, क्या आ जाएगा t नॉट इज इक्वल टू 2v1 over g, जो कि इक्वल आ जाएगा 2v नॉट sin थीटा over g. t naught is equals to 2v1 over g is equals to 2v naught sin theta over g. If k is non-zero small number, if k is a non-zero small number, then the time of flight t will be very close to t naught. Then the time of flight t will be very close to t naught. We can substitute t naught for t on the right side of above equation. We have आ जाएगा t is equals to 2v1 over kv1 plus g plus 1 over 3 k t naught square, जो कि इक्वल आ जाएगा 2v1 over kv1 plus g plus 1 over 3 k into 2v1 over g का होल स्क्वायर. दोबारा रिपीट करिए. t is equals to 2v1 over kv1 plus g plus 1 over 3 k t naught square is equals to 2v1 over kv1 plus g plus 1 over 3 k into 2v1 over g का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा 2v1 over g into 1 plus kv1 over g की पावर -1. 2v1 over g कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 plus kv1 over g की पावर -1 plus k over 3 into 2v1 over g का होल स्क्वायर.
which is equals to 2v1 over g into 1 minus kv1 over g plus 2kv1 over 3g. 2v1 over g is equals into 1 minus kv1 over g plus 2kv1 over 3g is equals to 2v1 over g into 1 minus kv1 over 3g. This equation gives a formula. This equation gives the formula for approximate time of flight in the presence of a weak retarding force. In the presence of a weak retarding force. ठीक है जी, अब ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था टी। अब हमने रेंज जो है आर डैश वो फाइंड आउट करनी है। लिखिए एज एक्स इज इक्वल्स टू u1 over k into 1 minus राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखें 1 minus kt plus k square t square over 2 minus k cube t cube over 6 plus so on. आगे राउंड ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। मैं दोबारा रिपीट करी, x इज इक्वल्स टू u1 over k स्क्वायर ब्रैकेट 1 minus राउंड ब्रैकेट 1 minus kt plus k square t square over 2 minus k cube t cube over 6 plus up to so on. जो कि इक्वल आ जाएगा किसके, अभी 1 minus 1 था वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा u1 over k, तो बाय माइनस का साइन था तो सारे अंदर वाले साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। आ जाएगा आपके पास के टी माइनस के स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस के क्यूब टी क्यूब ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन। To find an approximate expression for the range r dash in the presence of air resistance we put x is equals to r dash and t is equals to वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला t, hence for t is equals to टाइम ऑफ फ्लाइट वाला t जो था उसका साइन डाल, तो आपके पास आ जाएगा r dash is equals approximately equals to u1 over k
into kt minus k square t square over 2 is approximately equal to u1 into t minus kt square over 2. Substituting for t and retaining only the linear terms in k, we have substituting for t and retaining only the linear terms in k, we have r dash is approximately equals to u1 into 2v1 over g into 1 minus kv1 over 3g 2v1 over g bracket open 1 minus kv1 over 3g bracket close minus 1 over 2k minus 1 over 2k into 2v1 over g का square 2v1 over g का square into 1 minus kv1 over 3g का square 1 minus kv1 over 3g का square. Now it's approximately equals to u1 u1 into 2v1 over g okay sorry for delay अच्छा जी is approximately equal to u1 into 2v1 over g bracket open 1 minus अब 2v1 over g कॉमन ले लिया ना तब आ जाएगा 1 minus kv1 over 3g minus 1 over 2k into 2v1 over g और साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 minus 2k v1 over 3g plus k square v1 square over 9g square k square v1 square over 9g square which is approximately equals to 2u1 v1 over g into 1 minus 4k v1 over 3g 1 minus 4k v1 over 3g यानी कि आपके पास जो r डैश है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 2u1 v1 over g into 1 minus 4k v1 over 3g
अब u1 और v1 की वैल्यूज पुट करते हैं. नाउ 2u1 v1 ओवर g इज इक्वल्स टू u1 की जगह हम पुट करेंगे v नॉट कॉस थीटा और v1 की जगह पुट करेंगे v नॉट कॉस थीटा, ओ सॉरी v नॉट साइन थीटा. तो 2u1 v1 ओवर g किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू v नॉट कॉस थीटा इंटू v नॉट साइन थीटा ओवर g, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के. 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है ना, तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया. और v नॉट इंटू वी नॉट क्या आ गया v नॉट स्क्वायर, यानी कि हमारा जो 2u1 v1 ओवर g है वो किसके इक्वल आ जाएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, जो कि इक्वल है हमारी रेंज की. वेयर r इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल where r is the range of projectile when air resistance is neglected. When air resistance is neglected. तो हमारा जो r डैश है जो क्या आया था हमारा 2u1 v1 ओवर g इंटू 1 माइनस 4k v1 ओवर 3g, वो किसके इक्वल आ जाएगा r डैश इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 4k v1 ओवर 3g के इक्वल आ जाएगा. r डैश किसके इक्वल आ गया r डैश इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 4k v1 ओवर 3g. which gives del r is equals to r minus r dash, which gives del r is equals to r minus r dash, which is equals to decrease in range due to air resistance. Decrease in range due to air resistance. तो डेल आर हमारे अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 4r k v1 ओवर 3g के, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 4k v नॉट क्यूब ओवर 3g स्क्वायर साइन थीटा कॉस 2 थीटा. 4k v नॉट क्यूब ओवर 3g स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. अब ये देख लें, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हाइट है. अब विद एयर रेजिस्टेंस आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है, और विद नो एयर रेजिस्टेंस आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है. ठीक है, इसकी जितनी भी क्वेश्चन है मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह. अभी जो है मैं वेट कर रही हूँ, आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें. उसके बाद मैं एक दफ़ा जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं उनको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग काउंटर चेक कर लें किसी में कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी then you can ask me now. I'm waiting. ख्याल है सबको बहुत अच्छा समझ आ गया. जो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ना किसी ने हैंड रेज किया. ओके, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट से हमने आज स्टार्ट किया था ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मैं क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर रही हूँ. आप लोग काउंटर चेक करते जाएं. खोल लें अपने नोट्स वहाँ से.
खुल गए? ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन थी थीटा की, जो कि इक्वल थी माइनस जी टी ओवर के प्लस के वी वन प्लस जी ओवर के स्क्वायर इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के थी। डन। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट टी की इक्वेशन थी, जो कि थी टी इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस के थी। उसके बाद ये हमारा ग्राफ था, जिसमें पाथ विद एयर रेजिस्टेंस और पाथ विद नो एयर रेजिस्टेंस आपको दिखाया गया था। उसके बाद उसने कहा था जी कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको एक्सपैंड करेंगे, यानी कि ई की पावर एक्स किसके इक्वल होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू 4। उससे जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी वो किसमें चेंज होगी थी, टी इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू के टी माइनस के स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस के क्यूब टी क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू 4। टी कॉमन ले लिया था, जो कि साइड वाले जो इक्वालिटी के थे उससे कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास जो इक्वेशन बची थी वो थी वन इज इक्वल्स टू के वी वन प्लस जी ओवर जी के इंटू के माइनस के स्क्वायर टी ओवर टू प्लस के क्यूब टी स्क्वायर ओवर सिक्स प्लस अप टू 4। जिसको जब हमने मजीद सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास आया था टी इज इक्वल्स टू टू वी वन ओवर जी प्लस के वी वन प्लस वन ओवर थ्री के टी स्क्वायर प्लस अप टू 4। उसने कहा था जी अगर हम अपनी एयर रेजिस्टेंस को लिमिट कर दें, यानी कि हमारा जो के है वो अप्रोच करे जीरो को, तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल्स टू टू वी वन ओवर के वी वन प्लस जी प्लस के ओवर थ्री आर टी स्क्वायर। तो उसने कहा था अगर हमारे पास नो एयर रेजिस्टेंस हो, यानी कि के हमारा जीरो के इक्वल हो, तो हमारा टी नॉट जो आएगा वो क्या होगा, टू वी वन ओवर टी, जो कि इक्वल हो जाएगा टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी के। अब वो कहते हैं अगर के जो है हमारा नॉन जीरो स्मॉल नंबर है, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बहुत करीब होगा टी नॉट के। तो अब हमने क्या किया था, हमने टी नॉट को टी के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया था राइट साइड पे, तो हमारा आंसर जो इक्वेशन बनी थी वो क्या आई थी, टी इज इक्वल टू टू वी वन ओवर के वी वन प्लस जी प्लस वन ओवर थ्री के टी नॉट स्क्वायर, जो कि इक्वल था टू वी वन ओवर के वी वन प्लस जी प्लस वन ओवर थ्री के इंटू टू वी वन ओवर जी का होल स्क्वायर, जो कि फर्दर इक्वल था टू वी वन ओवर जी इंटू वन प्लस के वी वन ओवर जी की पावर माइनस वन प्लस के ओवर थ्री टू वी वन ओवर जी का स्क्वायर, which is further equals to 2v1 over g into 1 minus kv1 over g plus 2kv1 over 3g, जो कि इक्वल था 2v1 over g into 1 minus kv1 over 3g के। उसके बाद हमने रेंज जो है r डैश फाइंड आउट की थी, जिसमें हमारा जो x था वो इक्वल था u1 over k इंटू स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस राउंड ब्रैकेट 1 माइनस के टी प्लस के स्केयर टी स्केयर ओवर 2 माइनस के क्यूब टी क्यूब ओवर 6। वन माइनस वन कैंसिल हो गया और माइनस साइन था, अंदर वाले साइन सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू यू वन ओवर के इंटू के टी माइनस के स्केयर टी स्केयर ओवर टू प्लस के क्यूब टी क्यूब ओवर सिक्स अप टू सो ऑन। फिर उसने कहा था जी अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस पे करेंगे, तो हमारे जो आर डैश वाली इक्वेशन थी हमने एक्स को आर डैश पुट कर दिया था और स्मॉल टी को टाइम ऑफ फ्लाइट वाला टी पुट कर दिया था, तो आर डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू u1 over k into kt minus k square t square over 2, which is approximately equals to u1 into t minus k square over 2। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था और हमने सिर्फ अपनी लीनियर टर्म जो है के में उनको रिटेन किया था, तो हमारे पास जो आर डैश का फाइनल सोल्यूशन आ गया था वो था टू यू वन वी वन ओवर जी इंटू वन माइनस फोर के वी वन ओवर थ्री जी। मैंने ऊपर वाली कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने थर्ड वाली बोली है। फिर यू वन जो था वो हमारा वी नॉट कॉस थीटा और यू टू जो था वो वी नॉट साइन थीटा के इक्वल था, तो टू यू वन वी वन ओवर जी हमारा किसके इक्वल आ गया था, वी नॉट स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी के इक्वल आ गया था, जो कि आर के इक्वल था। आर हमारी रेंज थी,
जब एयर रेजिस्टेंस हमने निगलेक्ट की थी। तो आर डैश हमारा किसके इक्वल आ गया, आर इंटू 1 माइनस 4 k v1/3g, जिससे हमारे पास डेल आ रहा है यानी कि आर माइनस आर डैश, जो कि डिक्रीज इन रेंज है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। और हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर निकला था डेल आर का वो 4r/kv1/3g निकला था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4k v0 cube/3g स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन रिपीट कर लिए, आप लोगों ने एक दफ़ा फिर इसको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, फिर कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लिए बस इतना ही, तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।